How are you all? I hope that you all are fine. My name is Virda Nirali from Saraswati Group of Education. And today in this session we are going to start with our chapter number 5, that is Learning to Think. So as we all know that before starting any chapter or a poem, what we are learning first? We are learning the vocabulary words of that chapter or a poem. And why we are learning that? Because it gives the exact meaning of the given word, यानी कि वो हमें exact meaning जो word हमें दिया गया है उसका exact meaning क्या होता है वो हमें बताता है, right? By learning vocabulary words हमें ये चीजें पता चलती है. And apart from that, it also improves our skills such as reading, listening, writing, speaking. All these skills are improved by learning vocabulary words. So for that reason we are learning vocabulary. And our first vocabulary is position. Position over here means post, यानी कि job. कि आप job कर रहे हो तो आप कौन सी position पे हो, कौन सी post पे हो, right? Head post पे हो, like then you are at the senior post. कौन सी post पे हो आप? So over here position means that. Then our next vocabulary is spade. A tool used for digging. यानी कि एक tool जो है वो dig करने के लिए जो use होता है that is known as spade. And you can also see in the picture that how does the spade looks. So in this chapter you have only two vocabulary. One is position, means over here post or a job, and spade, a tool used for digging. So these are your two vocabulary. Now let's start with our chapter explanation. But before that, let me give you the brief introduction about this story, that what the story is about. So learning to think is a play about a boy, यानी कि एक छोटा ड्रामे जैसे एक प्ले है about a boy whose name is Suhas and his grandfather. The grandfather loves to teach and amuse children. कि grandfather जो थे उससे बच्चों को पढ़ाना और उसे हंसाना बहुत अच्छा लगता था. Here he teaches Suhas to be fair, just. यहाँ पे grandfather जो boy Suhas है उससे फेयर यानी कि कोई भी डिसीजन ले उसमें वो सही डिसीजन ले ऐसा बोल रहे हैं. एंड टू थिंक थरली अबाउट थिंग्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस, यानी कि कोई भी चीज़ के बारे में कोई भी डिसीजन ले उसके पहले उसके बारे में सारी चीज़ें पहले जान ले और उसके बाद जो सही डिसीजन है वही डिसीजन वो दे. ऐसी बातें जो है वो ग्रैंडफादर सुहास को समझाते हैं. Okay, so now let's see what is actually happening in the story. So let's start with that. Narrator. Grandfather is one of the kindest, wisest men I have ever known. Although he is old, he is younger at heart than anyone I have never seen. He spent most of his time with children, teaching them new things and amusing them with stories. At times, he asks them questions, both to see what they know and to sharpen their minds, so that they think on their own. Here the narrator is saying about that how the grandfather is. कि grandfather कैसे थे, उसका nature कैसा था, उसके बारे में यहाँ पे narrator ने बताया है कि वो बहुत ही kind और wise man थे और वो बहुत old थे. He is younger at heart. वो ओल्ड थे लेकिन वो अपने दिल से यानी कि अपने दिल से वो छोटे थे. आई हैव नेवर सीन, ऐसे लोग मैंने कहीं नहीं देखे हैं. और वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो था वो चिल्ड्रन के साथ स्पेंड करते थे. वो चिल्ड्रन को नई नई चीज़ों के बारे में बताते थे, वो उसे स्टोरी सुनाते थे. आफ्टर सीइंग देम दीज थिंग्स, और वो फिर उसे क्वेश्चंस भी पूछते थे कि उन लोगों ने इसमें से क्या सीखा. Right? What they learned from the things, what they learned from the stories.
grandfather was asking such question because he wants that children should think by their own, कि वो अपने आप सोचे और उसका दिमाग भी थोड़ा तेज हो जाए, to sharpen their minds. So for that reason grandfather was asking questions after seeing, और उसे नई नई चीज़ों के बारे में बताते थे. उसके बाद वो ये पूछते थे कि तुमने इसमें से क्या सीखा. Now grandfather, I have a question. I'd like you to think about Suhas. Imagine I have a cake and I want to divide it between 3 people. How do you think I should do it? Now grandfather जो है वो सुहास को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि I have a question, कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा और तुम सोचना कि उसका आंसर क्या होगा. इमेजिन कि मेरे पास केक है, राइट, और मुझे ये केक को 3 लोगों के बीच में डिवाइड करना है. मुझे एक केक 3 लोगों को देना है. तो मैं ये कैसे करूंगा? हाउ डू यू थिंक आई शुड डू इट? यू ऑल्सो थिंक कि कैसे होगा? सुहास इज सेइंग दैट्स इजी ग्रैंडफादर. You should cut it into 3 slices and give 1 slice to each person. So Suhas ने immediately answer दे दिया कि it is very easy grandfather, कि हमें केक को 3 slice में कट करना है और 1 slice each person को दे देनी है. Grandfather, are you sure that will work? कि उसने फिर से पूछा कि तुम्हें श्योर हो कि ये वर्क करेगा? Let's say the cake has to be divided between Preeti, Akash and you. If I cut the cake into 3, surely 1 slice will be smaller than the rest. Is it fair that one of you gets a smaller piece? Now, what the grandfather is saying, कि चलो हम ऐसा मान लेते कि मुझे ये केक जो है वो प्रीति, आकाश और तुम्हारे बीच में डिवाइड करना है. तो अगर मैं ये केक को 3 स्लाइस में डिवाइड करूंगा तो फॉर श्योर है कि जो एक स्लाइस होगा वो दूसरे 2 स्लाइस से वो छोटा रहेगा. तो क्या ये फेयर है कि एक को छोटा स्लाइस मिले और 2 लोगों को बड़े स्लाइसेस मिले? इज इट फेयर इनफ? सुहास सेड certainly not grandfather. तो सुहास ने क्या बोला? नो, दैट इज नॉट फेयर ग्रैंडफादर, कि एक को छोटा पीस मिलेगा और दूसरे 2 लोग हैं उसे बड़ा पीस मिलेगा. दैट इज नॉट फेयर. सो ग्रैंडफादर सेड, व्हाई डू यू से दैट? आई डिवाइडेड द केक एग्जैक्टली हाउ यू आस्क्ड मी टू, डिडंट आई? तो ग्रैंडफादर अब क्या बोलते कि अब तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये तो फेयर नहीं है, कि मैंने तो एग्जैक्टली वैसा ही किया जैसे तुमने बोला, कि तुमने ही बोला था ना कि केक को 3 स्लाइस में डिवाइड कर लेते हैं, तो मैंने भी वैसा ही किया, तो ये तो फेयर नहीं हुआ. सुहास, yes, but one of the slices was smaller than the rest and they should have been of the same size. So Suhas is saying कि एक जो है वो स्लाइस छोटा रहेगा बाकी 2 स्लाइस से, राइट? अगर ऐसा हुआ तो वो फेयर नहीं होगा ना. सारे जो स्लाइस है वो सेम साइज के होने चाहिए, तभी वो फेयर डिसीजन होगा. सो ग्रैंडफादर इज सेइंग, राइट, देन डू यू थिंक इट वुड बी फेयर टू डिवाइड द केक इनटू 3 इक्वल पीसेस? सो ग्रैंडफादर व्हाट इज सेइंग कि अब तुमने सही बोला. सो नाउ डू यू थिंक कि क्या तुम्हें लगता है कि ये फेयर डिसीजन है कि केक को 3 इक्वल पीस में कट करना? Is it possible? क्या ये fair decision है? So Suhas is saying yes, that would be a fair share and there would be no reason to complain. तो अब क्या बोले? Yes, it is a fair and उसमें तो कोई complain नहीं है. ठीक है, तो अब grandfather क्या बोलते हैं? Imagine then, Suhas, that I need to send 3 baskets somewhere with 3 people. कि अब तुम imagine करो कि मुझे 3 बास्केट को 3 लोगों को भेजने हैं. Now how should I decide who should carry which basket? कि अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन सा बास्केट कौन से पर्सन को जाएगा? Would it be fair to give basket to each person? कि क्या हर एक पर्सन को एक बास्केट देना वो फेयर डिसीजन है? सुहास से, I must give this some thought, कि मुझे इसके बारे में कुछ सोचना होगा.
फिर वो सोचता है thoughtful, I don't think that would be fair. For what if one basket is bigger than the rest? कि मुझे ये नहीं लगता कि ये फेयर डिसीजन है, क्योंकि एक बास्केट जो है वो बड़ा है दूसरे दो बास्केट से, तो वो फेयर डिसीजन नहीं होगा। ग्रैंडफादर से, I'm happy you are learning to think, Suhas, but let's say all the baskets are of the same size. क्योंकि उसने आंसर देने से पहले सोचा, इसलिए ग्रैंडफादर उसे क्या बोलते कि चलो मैं खुश हूँ क्योंकि तुम अब सीख गए हो सोचना, कोई भी डिसीजन देने से पहले तुम उसके बारे में सोचने लगे हो। सो आई लाइक दैट थिंग। नाउ उस ग्रैंडफादर इज सेइंग, चलो अब जो बास्केट है वो सेम साइज के है, पहले मैंने ये साइज डिफर की थी, बट नाउ द बास्केट्स आर ऑफ सेम साइज, की जो बास्केट है वो सारे सेम साइज के हैं। नाउ सुहास, in that case it would be fair if you give each one a basket to carry. तो अब सुहास क्या बोलते हैं, चलो अगर बास्केट सेम साइज के है तो फिर वो फेयर डिसीजन होगा कि हम 3 पर्सन को एक एक बास्केट हम दे सकते हैं, because all the baskets are of same size, so that's why it will be a fair decision. Now the grandfather is saying, but what happens if one basket is filled with the rocks and the other two are filled with feathers? अब ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं कि चलो एक बास्केट जो है वो पूरा रॉक यानी पत्थर से भरा हुआ है एंड दूसरे जो बास्केट है वो फेदर से भरे हुए हैं, तो क्या होगा? नाउ सुहास इज सेइंग, ओह दैट नेवर अकर्ड टू मी, कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। देन वी मस्ट मेक श्योर दैट ऑल द बास्केट वेय द सेम, तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सारे बास्केट है वो सेम वेट के हो, ऐसा हमें करना पड़ेगा, तभी वो फेयर डिसीजन होगा। सो नाउ ग्रैंडफादर से दैट आर यू श्योर, कि तुम श्योर हो जो तुमने बोला वो? व्हाट इफ देयर आर 2 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड, वुड इट स्टिल बी फेयर? कि क्या होगा कि अगर 2 एडल्ट हो एंड 1 चाइल्ड हो तभी वो फेयर होगा? तो सुहास इज सेइंग, oh dear, there are so many things to consider here, कि यहाँ पे अगर हम देखने चाहे तो कई सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में लेनी पड़ेगी। कोई भी पर्सन हो, वो ओल्ड हो, एडल्ट हो या चाइल्ड हो, डिसीजन तो हमें फेयर ही लेना पड़ेगा, फिर वो कौन सी भी एज का हो। वी नीड टू थिंक fairly only without making any kind of partiality. चलो ये छोटा है तो हम उसे बड़ा दे देंगे, ये बड़ा है तो अगर हम उसे छोटा पीस भी दे देंगे तो चलेगा। नो, that shouldn't be a fair decision, right? So grandfather is saying, I hope you see Suhas that while the burden must be equally distributed, कि burden जो है वो equally हमें distribute करना है, it must also suit the strength of the person who carries them. हमें बर्डन इक्वली डिवाइड करना है और हमें ये भी देखना है कि जो पर्सन है वो बर्डन को कैरी कर सकता है, उसकी वो कैपेबिलिटी है, वो भी हमें देखना पड़ेगा, राइट? हमें सारी चीजों को ध्यान में लेके चलना पड़ता है। नाउ सुहास इज सेइंग, आई अंडरस्टैंड नाउ, कि अब मुझे पता चलता है। ग्रैंडफादर, ask me another question and let me see if I can do better. चलो अब आप मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछो और मुझे ट्राई करने दो कि मैं उसे सॉल्व कर पाता हूँ या नहीं। So now grandfather laughs. Well, try this then. चलो तुम अब ये ट्राई करो। Suhas, imagine I am looking for someone who can dig my land for me and 3 people apply for the position. कि चलो अब सोचो कि मुझे जो मेरी लैंड है वो मुझे डिग करनी और उसके लिए 3 पीपल चाहिए वो पोजीशन के लिए। नाउ विल इट बी फेयर इफ आई आस्क देम टू डिग, कि क्या वो फेयर होगा कि मैं उसे डिग करने के लिए बोलूं, सो दैट आई मे सी व्हिच ऑफ देम फिनिशेस द जॉब फास्टेस्ट, क्योंकि क्या मुझे पता चलेगा कि कौन सबसे पहले अपना जॉब फिनिश कर लेता है। Let's see what is happening now. Suhas,
Will they all start working at the same time? तो वो फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये तीनों लोग एक ही टाइम पे अपना वर्क शुरू करेंगे? ग्रैंडफादर से यस इट शैल बी सो, यस ऐसा ही होगा कुछ। तो सुहास इज सेइंग विल दे ऑल हैव टू डिग द सेम लेंथ ऑफ ग्राउंड? तो वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि क्या सारे जो ये तीन जो वर्कर्स है उन्हें सेम, हर पर्सन को एक सेम जो उसकी लेंथ है कि तुम्हें इतना पोर्शन डिग करना है, सारे लोगों को इतना ही इक्वल पार्ट दिया गया हुआ है? सो ग्रैंडफादर इज सेइंग यस इट विल बी एग्जैक्टली द सेम, यस वो सब कुछ सेम ही रहेगा। तो सुहास से विल दे ईच गेट अ गुड स्पैड? कि क्या ये तीनों लोगों को अच्छी स्पैड मिलेगी डिग करने के लिए? तो ग्रैंडफादर से यस दे शैल, कि उसे अच्छी ही मिलेगी, तीनों को एक जैसी ही मिलेगी स्पैड। सुहास से बट इट कुड बी दैट वन मैन गेट्स ग्राउंड दैट हैज सॉफ्ट अर्थ while another gets hard and rocky। तो फिर आगे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपने इक्वल पोर्शन और सारी चीजें इक्वल कर ली, लेकिन जो उसे पार्ट मिला है डिग करने के लिए, तो वो ऐसा हो सकता है कि उसका जो पार्ट है अर्थ का वो सॉफ्ट हो, यानी वो जल्दी से डिग हो जाए, और दूसरे पोजीशन पे जो लोग है पर्सन, फिर जो दूसरे पोजीशन पे जो पर्सन है तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि उसका जो पार्ट है डिग करने का तो वो हार्ड और रॉकी हो सकता है, तो वो ज्यादा टाइम लेगा, राइट? सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जो उसका सॉफ्ट अर्थ वाला जो पार्ट है वो जल्दी से डिग हो जाएगा, और जो हार्ड वाला पार्ट है देन इट विल टेक टाइम। सो ग्रैंडफादर से लेट्स से द ग्राउंड्स आर अलाइक टू। तो फिर चलो हम ये बोलते हैं कि उसके ग्राउंड्स जो है वो भी सेम है। तो सुहास इज सेइंग इन दैट केस आई थिंक दैट हुएवर फिनिशेस फर्स्ट विल बी बेस्ट सूटेड फॉर द जॉब। तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सबसे पहले ये फिनिश करेगा वो इस जॉब के लिए परफेक्ट होगा। दैट इज ऑफ कोर्स इफ हिज वर्क एज गुड एज दोज ऑफ द अदर टू। यस कि उसका वर्क दूसरे दो लोग से अच्छा होगा तो वो सबसे पहले ही होगा, एंड दैट इज अ वेरी फेयर डिसीजन, राइट? एंड हियर द ग्रैंडफादर से laughs and clap appreciatively। तो ये बात पे ग्रैंडफादर हंसते हुए वो क्लैप करते हैं। I agree with you कि मैं तुम्हारे साथ अग्री करता हूँ। सुहास, if you keep thinking in this manner, you will be able to achieve many things। कि तुम ऐसे ही तुम कोई भी डिसीजन लेने से पहले ऐसे ही तुम सोचते रहोगे तो तुम आगे जाके बहुत कुछ अचीव करोगे अपनी लाइफ में। Always remember that if you think deeply about the little things, you will surely choose wisely in matters of greater importance। कि ऐसे ही कोई भी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में उसका डिसीजन लेने से पहले तुम उसके बारे में डीपली सोचोगे तो for surely you will make a wise decision, and आगे जाके वो तुम्हें बहुत ही काम लगेगा। It is a very important thing, क्योंकि आगे जाके कोई भी तुम्हें important decision लेना होगा तो तुम ऐसे ही deeply think करोगे, then it will be very much helpful to you, right? So this is the chapter learning to think. I hope that you all have understood this chapter. So now let's have a quick recap of this chapter with the help of the video. Learning to think. Grandfather spends most of his time with children, teaching them new things and amusing them with thought-provoking stories. Today, he's talking to Suhas about how work can be equally divided. He gives 3 interesting situations to Suhas. The questions that the grandfather asks are about fair shares, equal distribution of weight, and exercising of skills. Suhas cleverly answers his questions by deeply thinking about the little things and choosing in matters of great importance. Okay, so I hope that you have seen the video and you have recalled the story. So this is all about today's session. Now I'll send you the worksheet
based on this chapter which you are supposed to solve it in your book. And while solving the worksheet, if you don't understand anything, then just go through the video again. यानी कि ये वीडियो को फिर से देखो and still if you don't understand then you can ask me. Okay? So this is all about today's session. I hope you all enjoyed it. So now until we meet again in the next session, till then, bye everyone. Thank you and take good care of yourself.